الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی زبان بھی درود پاک سے خالی نہ ہو. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه وعلماء أمته أجمعين. انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، بالخصوص مجاہد اسلام فاضل نوجوان پیکر اخلاص حضرت مولانا مفتی عابد محمود عباسی صاحب، شاعر اسلام، برادر مکرم میزبان محفل محترم جناب قاری محمد جواد عباسی صاحب، اہل سنت والجماعت یوسی نمبر کے صدر محترم المقام جناب ساجد عباسی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مجمع میں تشریف فرما میری جماعت سے وابستہ غیور، نڈر، بہادر، بے باک نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ رب تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت اسے ہم سب کی بخشش و نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. خلاق عالم آدم عزیز اپنے دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل بہت سارے علماء کرام، شعراء اعظام آپ کے سامنے اپنی بات بیان فرما چکے ہیں اور اس کا تاثر آپ کے چہروں سے بہت واضح نظر آ رہا ہے. میں کوشش کروں گا
کہ میزبان محفل جو وقت آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے اسی وقت کے دوران اپنی بات کو مکمل کر سکوں، اور جو ایک وقت تو آپ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طے شدہ وقت میں آپ اپنا پروگرام مکمل کر سکیں۔ بلا تمہید میں عنوان کی مناسبت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اشتہارات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ حمد و نعت کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کے عنوان سے معنون آج کا یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ حمد بھی آپ نے سنی، نعت بھی سنی، اتحاد امت کے عنوان سے حضرات علماء کرام کی میزبان محفل کی گزارشات بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ میں بہت مختصر وقت میں اشارتاً انہی 3 عنوانات کی مناسبت سے چند باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا، لیکن قبل اس سے ایک گزارش یہ ہے کہ جو بات بھی دل و دماغ میں فہم و فراست میں آئے اس بات کو لے کر کے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اگلی یہ نیت ہونی چاہیے، یہ عزم و ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آج جس کی حمد کو سنا، آج میں نے اور آپ نے جس کی نعت کو سنا، اس کی حمد اور اس کی نعت کے ساتھ ساتھ بقیہ جو زندگی ہے ان کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اور اس کے برعکس معصیت، حکم عدولی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ و معمور رکھ کر کے گزارنی ہے، تاکہ اس کانفرنس میں آنے کا آپ کو بھی فائدہ ہو، اور جن احباب نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد گزشتہ 6 سالوں سے آپ کے سامنے اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد ہو رہا ہے، وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو سکے۔ محض جذباتیت کو، سر اور آواز کو، انداز بیان کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہمارا دامن خالی ہو تو میں واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نہ یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی وقت دینے کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ ہماری نیت ہی کچھ اور تھی۔ جو ہم لینے آئے تھے وہ لے نہ سکے، جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ دنیا کی محافل، دنیا کی جو مجالس ہیں ان سے ہٹ کر ایک خاص مجلس اور خاص محفل ہے، جس محفل میں حمد و نعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ حمد اور نعت کیا ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حمد اور نعت کا معنی عربی لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں تب بھی، اور آسانی کے لیے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اردو کی اسکول اور کالجز کی کتابوں میں آپ دیکھیں تب بھی یہ معنی ملے گا کہ تعریف کرنا۔ حمد کا معنی بھی تعریف کرنا اور نعت کا معنی بھی تعریف کرنا۔ اور پھر اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ حمد کے اندر جو تعریف ہے وہ کس کی ہے، اور نعت کے اندر جو تعریف ہے وہ کس کی ہے۔ اس فرق کو بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جب تعریف رب العالمین کی ہو تو وہ حمد ہے، اور جب تعریف رحمت للعالمین کی ہو تو وہ نعت ہے۔ جب تعریف خدا کی ہو تو وہ حمد ہے، اور جب تعریف مصطفیٰ کی ہو تو وہ نعت ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ حمد کا معنی بھی تعریف کرنا اور نعت کا معنی بھی تعریف کرنا، اور پھر حمد اور نعت کے درمیان فرق کیا ہے۔ جب خدا کی تعریف ہو تو اسے حمد کہا جائے گا، اور جب مصطفیٰ کی تعریف ہو تو اسے نعت کہا جائے گا۔ اب یہاں پر اگلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حمد کس نے کہی اور کس کی سنت ہے، نعت کس نے کہی اور کس کی سنت ہے۔
नात में मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ है, लेकिन ये नात कहना अल्लाह की सुन्नत है। और फिर हमद में खुदाए जुल जलाल की तारीफ है, और ये हमद कहना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर ये मुत्तकीन की महफिल है, ये मुमिनीन की मजलिस है, ये रब की सुन्नत से भी मोहब्बत करते हैं और रब के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से भी मोहब्बत करते हैं। जो रब ने किया ये वो भी करना चाहते हैं, जो मुस्तफा ने किया ये वो भी करना चाहते हैं। इनकी मोहब्बत खुदा से भी है, इनकी मोहब्बत मुस्तफा से भी है, इनकी चाहत खुदा से भी है, इनकी चाहत मुस्तफा से भी है। ये नात भी पढ़ते हैं और हमद भी पढ़ते हैं, ये नात पर भी बोलते हैं, हमद पर भी बोलते हैं। ये नात वाले को भी मानते हैं, हमद वाले को भी मानते हैं। और फिर मैंने माक़बल में ये अर्ज किया है कि हमद में तारीफ खुदा की है, लेकिन हमद कहना ये सुन्नत मेरे मुस्तफा की है। अब मुस्तफा की सुन्नत को देखिए कि मुस्तफा ने इस सुन्नत को किस अंदाज में जिंदा किया है। मेरे पैगंबर की बेइज्जत के बाद की जिंदगी को उठाओ, कोई सफा में देखोगे मोहम्मद हमद कह रहा है और रब की हमद को बयान करते हुए पैगंबर के वजूद अतहर पर कभी तो पत्थर बरसाए जाते हैं, पैगंबर के वजूद अतहर पर कभी तो लाठियां बरसाई जाती है। हमद कहते हुए पैगंबर के वजूद अतहर पर जबर तशद्दुद किया जाता है। ये हमद कहने की देर थी कि जो पहले इतनी तारीफ करने वाले थे, अगर उनसे ये पूछा जाए ये मक्का में अब्दुल्ला का जो बेटा है जिसका नाम मोहम्मद है, ये अब्दुल मुत्तलिब का जो पोता है, ये अबू तालिब का जो भतीजा है, ये शाम के सफर पे निकलने वाला जो ताजिर है, ये खदीजा का जो शोहर है, ये फातिमा का जो अब्बू है, इसकी तारीफ किन अल्फाज में करते हो? आपको बहुत सारा तबका वो मिलेगा जो इसकी तारीफ करता है, जो इसकी मदा को बयान करता है, जो इसके नाम को बुलंद समझता है, जो इसके औसाफ हमीदा को बयान करता है। लेकिन दरमियान में एक ऐसा मरहला आता है, दरमियान में एक ऐसा वक्त आता है कि जब पाक पैगंबर ने हमद की सुन्नत पे अमल किया है, अल्लाह की तारीफ को बयान किया है, अल्लाह की तौहीद को बयान किया है, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया है, अल्लाह की उलूहियत को बयान किया है, अल्लाह की यगानत को बयान किया है, अल्लाह की अजमत को बयान किया है, रब की तौहीद का ऐलान किया है। ये सारे तारीफ करने वाले तोहे सफा का मकाम हो तब भी मुखालिफ नजर आते हैं। मेरा पैगंबर यहाँ से आगे बढ़ता है, खाना काबा की दहलीज पे देखोगे मोहम्मद हमद को बयान करता हुआ नजर आता है। फिर हमद को और खोलना चाहता हो, जब कुरान की तिलावत होती है, कुरान की तिलावत में ये हमद को बयान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में बयान कर रहा है। कभी रहमान क्या करके, कभी रहीम क्या करके, कभी मालिक यौमिद्दीन क्या करके, और फिर ये रब की तारीफ करते हुए कुरान की आयात बय्यिनात खोलते चले जाते हैं। तभी आसमानों के रब की तारीफ इस अंदाज में बयान होती है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जिस रब की हमद को सुनने के लिए सिरियों के नौजवानों तुम आए हो, सिरियों के मुसलमानों तुम आए हो। उसकी तारीफ ये है कि जमीनों आसमान का अगर कोई तन्हा मालिक देखना है, जमीनों आसमान की अशिया का अगर कोई तन्हा मालिक देखना है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द के अंदर रब ये ऐलान कर रहा है कि मेरी तारीफ ये है जो मोहम्मद ने तुम तक पहुंचाई है, मोहम्मद ने पढ़कर तुम्हें सुनाई है कि मैं जमीनों का भी मालिक हूँ, मैं आसमानों का भी मालिक हूँ, मैं जमीन की अशिया का भी मालिक हूँ, मैं आसमान की अशिया का भी मालिक हूँ। इसी पे बस नहीं है, अगर अपने वजूद पे गौर व फिक्र करोगे, तुम अगर गौर व फिक्र करने के बाद देखोगे हमारा वजूद खुद का मांगा हुआ तो नहीं है, हमारा वजूद खुद का बनाया हुआ तो नहीं है। हमने रब से सवाल नहीं किया था रब्बा मेरी दो आंखें होनी चाहिए, हमने रब से सवाल नहीं किया था कि मुझे फाम व फरासत मिलनी चाहिए, मुझे सखावत और ज़कावत मिलनी चाहिए। मैंने रब से सवाल नहीं किया था मेरे दो बाजू होने चाहिए, मेरे हाथ पांव भी सीधे होने चाहिए। कोई चीज मैंने मांगी नहीं है, मैं अपने वजूद को तलाश करता हूँ, मुझे मेरा वजूद नहीं मिलता, मैं तो अदम के पर्दू से हूँ। रब ताला अपनी तारीफ करवाते हुए मुझे पैगाम देता है कि मेरी हमद को बयान करने वाले जरा मेरे मोहम्मद से पूछ, मैंने अपनी हमद को जिब्रील के जरिए मोहम्मद तक पहुंचाया है। फिर वो मोहम्मद कुरान पढ़ के मुझे और आपको बताता है कि वजूद पे गौर करो, रब की हमद मिलेगी, रब की तारीफ मिलेगी, रब की तौसीफ मिलेगी।
मिलेगी, रब की अजमत मिलेगी, रब की बुलंदी मिलेगी, रब की पाकी मिलेगी, रब का तकद्दुस मिलेगा, रब की अजमत मिलेगी। रब्बा वो कैसे मिलेगी? रब कहता है गौर कर अपने वजूद को देख, कहां से लिया है? इंसान गौर करता है आदम के पर्दों से वजूद किसने दिया है? जवाब आता है यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, एक सुल्ब और एक सीने से चलाने वाली जो जात है वो अल्लाह की जात है। फिर इससे आगे रब ताला ने कुरान की आयात बय्यिनात में मुझे और आपको अपनी तारीफ का इजहार करते हुए ये पैगाम दिया है। कभी तुम कतराए आब थे, रब ने कतराए आब को दो मुख्तलिफ मकामों से चलाया, एक मरकज में जमा किया और फिर मरकज में जमा करने के बाद रब ने अगली हालत में बदला, मुज़ग़े गोश्त बना। फिर मुज़ग़े गोश्त बनने के बाद अभी इसमें हड्डियां नहीं थी, रब ऐलान करता है फ़कसौनल इज़ाम लहमा, मैंने फिर उन हड्डियों को पैदा करके उनके ऊपर गोश्त को चढ़ाया है। रब्बा इसके बाद में दुनिया में आया, उस मंजर को भी बयान कर दे। रब अपनी तारीफ सुनाता है, रब अपनी अजमत बताता है कि सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर, बगैर मांगे यहाँ तक तुम्हें बनाया है, फिर इसके बाद तुम्हें पैदा करके दुनिया में रब ने भेजा है। फिर इस पैदाइश में भी मेरा जोर नहीं है, इसमें भी मेरी तमन्ना नहीं है, इसमें भी मेरी मंशा नहीं है, इसमें भी मेरी ख्वाहिश नहीं है। रब ऐलान करता है कि तू अपने जोर और ताकत से दुनिया में नहीं आया है। सुम्मा सबीला यस्सरा, रब ने तेरे पैदाइश के रास्ते को आसान करके तुझे अपनी तारीफ सुनाई है कि अगर रब की हम्द को बयान करना चाहता है कुरान को पढ़ता जा और रब की हम्द और तारीफ को देखता चला जा। ये हम का माना है अल्लाह की तारीफ करना। हम का माना है किसकी तारीफ करना? हम का माना क्या है? किसकी तारीफ करना? अल्लाह की तारीफ करना। और फिर तसलसल टूट चुका है। यहीं से आगे चलता हूँ, बात मैंने भी बड़े दूर लेकर के जानी थी, आपको सूरह इन्फितार में पहुँचाना था कि रब तारीफ करते करते मुझे और आपको क्या बता रहा है। बहरहाल फिर कभी तफसील इंशाअल्लाह अपने वजूद पे गौर करो और रब की तारीफ देखो, रब की अजमत देखो, रब की बुलंदी और अजमत को देखो कि उस रब ने मुझे और आपको किस अंदाज में बनाया है, सजाया है, संवारा है, मुज़य्यन किया, मुनव्वर किया और फिर दुनिया में भेजा है। ये तारीफ सुनाने वाला कौन? ये तारीफ सुनाने वाला कौन? और फिर अल्लाह ने मोहम्मद के ज़रिए ये तारीफ हम तक पहुँचाई है। दरमियान में अगर तज़किरा ना करूँ तो फिर जुल्म समझता हूँ। ये जो तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, ये कुरान मोहम्मद तक पहुँचा और मोहम्मद ने ये कुरान किसके हवाले किया? सहाबा के हवाले किया। ये एक तसलसल है। इस तसलसल को भी याद रखा जाए कि ये तारीफ़ जो अल्लाह की हो रही है, ये हम जिस उन्वान से मुअन्वन आज की ये कॉन्फ्रेंस है, ये हम सबसे पहले अल्लाह ने अपनी किताब में बयान फरमाई और फिर उसके बाद ये हमद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ुबान पे जारी हुई है और फिर वहाँ से सहाबा तक मुंतकिल हुई। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, बस वक्त पूरा होने वाला है, बात इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रही है। स्पीकर के बगैर आपको आवाज़ आ रही है? सब तक बात पहुंच रही है? बस इसकी ज़रूरत नहीं है, फिक्र ना करें, आप मेरी तरफ देखें, बिल्कुल आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। ये हमद फिर सहाबा ने मुझे और आपको बतलाई है और बतलाने में किसी किस्म की कोई कमी छोड़ी नहीं है। जिस तरह अल्लाह ने इस किताब के अंदर अपनी तारीफ मोहम्मद के हवाले की थी, उसी अंदाज में वो तारीफ, वो हमद, वो नात, वो तौसीफ, वो सिफत वो सहाबा तक पहुंची और सहाबा ने उसी अंदाज में उम्मत तक पहुंचाई है। किसी लम्हे उन्होंने कोई खता नहीं की है, कोई लफ्जिश नहीं की है, कोई गलती नहीं की है कि तारीफ कुछ और थी, बदल कर उम्मत को दी। जैसे रब से मिली मोहम्मद तक पहुंची, जैसे मोहम्मद ने अबू बकर को दी, अबू बकर ने उम्मत तक पहुंचाई। तो इस एतबार से उम्मत के मोहसिन जिन्होंने हमद का उन्वान हम तक पहुंचाया है, ये हमद का उन्वान हम तक पहुंचाया है और ये पहुंचाने वाले पाक पैगंबर के सहाबा हैं, ये पहुंचाने वाले पाक पैगंबर के सहाबा हैं। मैंने अर्ज किया था कि हमद अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नात मुस्तफ़ा की तारीफ को कहते हैं। ये हमद सुन्नत किसकी है? मुस्तफ़ा की है। और ये नात सुन्नत किसकी है? रब्बुल औला की है। एक सुन्नत मुस्तफ़ा की सुनी है, आइए एक सुन्नत मुस्तफ़ा के खुदा मेरे और आपके रब
اللہ तबारक व तआला की सुनते हैं कि ये जो तौसीफ हो रही है, ये जो तारीफ हो रही है अल्लाह की, इसको बयान करने वाला मोहम्मद है और मोहम्मद की तारीफ को बयान करने वाला मोहम्मद का खुदा है। अब उस अंदाज में एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ। मिशकातुल मसाबीह में हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रा यासीन, दो सूरतें कुरान में, सूरह ताहा और सूरह यासीन। इस रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो सूरतों की तिलावत फरमाई। इन दो सूरतों को अल्लाह ने पढ़ा। कब पढ़ा? जब मोहम्मद की विलादत हुई? नहीं। कब पढ़ा? जब मोहम्मद की बेइज्जत हुई? नहीं। कब पढ़ा? जब मोहम्मद को पैगंबरी मिली? नहीं। इस रिवायत में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत की है, उस वक़्त की है जब ज़मीन और आसमान पैदा नहीं हुए थे, अल्लाह ने इनको बनाया नहीं था। बिअल्फ़ि आमिन, 1000 साल ज़मीन और आसमान की तख्लीक से कबल अल्लाह ने सूरह यासीन को भी पढ़ा है और सूरह ताहा को भी पढ़ा है। सूरह यासीन भी मेरे मुस्तफ़ा की नात है, सूरह ताहा के अंदर भी मेरे मुस्तफ़ा की नात है। तो ये नात कहना किसकी सुन्नत है? अल्लाह की। सारे बोले नात कहना किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। और ये नात अल्लाह ने कब पढ़ी है? ये नात अल्लाह ने कब पढ़ी है? जब ज़मीन और आसमान बने नहीं थे, उससे 1000 साल कबल। नात की तारीफ पता चल गई है। लेकिन नात पढ़ने के कुछ उसूल ज़वाबित थे। कारी जवाब सब कलाम पढ़ रहे थे, मैं इनका कलाम भी सुन रहा था, अंदाज को भी देख रहा था। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत को समझकर नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नात के अंदर किसी किस्म की गफलत नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा मुक़द्दस उन्वान है। एक तो प्रोग्राम बहुत जल्दी से शुरू हुआ है, बहुत वक्त बीत चुका है और आपकी थकावट मुझे नजर आ रही है, वरना मैं इस उन्वान को खोलता, घंटा सवा घंटा वक्त होता, मैं आज आपको समझा के जाता कि इस नात की अजमत क्या है और इस हम्द की अजमत क्या है। बहरहाल फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह बात तफसील से करेंगे। अभी इतना समझें कि हम्द के बाद नात मोहम्मद की तारीफ को कहते हैं और ये नात सबसे पहले किसने कही? अल्लाह ने कही है। ये नात सबसे पहले किसने कही? अल्लाह ने कही। कब कही है? जब जमीन भी नहीं पैदा हुई थी, आसमान भी नहीं पैदा हुआ था। ये जमीन और आसमान का पैदा करने वाला वो आसमानों का रब ही है। उसने 1000 साल कबल सूरह ताहा को पढ़ा, सूरह यासीन को भी पढ़ा। सूरह ताहा में भी मोहम्मद की नात है, सूरह यासीन में भी मोहम्मद की नात है। गोया के नात की तारीख भी पता चल गई है कि कब से पढ़ी जा रही है और नात को पढ़ने वाला कौन है ये भी पता चल चुका कि नात को पढ़ने वाला भी आसमानों का रब है, इब्तिदा करने वाला भी वही है और ये आसमानों के रब की सुन्नत है। और फिर इधर सूरह यासीन को अगर आप खोल करके देखेंगे, सबसे पहली आयत है यासीन, पाक पैगंबर के दमदार की तारीफ है। और फिर आगे देखें वल कुरआनिल हकीम, पैगंबर पे जो किताब नाजिल हुई है उसकी तारीफ और तौसीफ है। फिर आगे देखिए इन्नका लमिनल मुरसलीन, अगर वक़्त होता इन्नका की जो ज़मीर मुखातिब है, इस मुखातिब के खिताब पे बात करता। बहरहाल यहाँ नबुव्वत की रिसालत की तारीफ हो रही है। अल्लाह ने अपने पैगंबर के दमदार की तारीफ करके नात पढ़ी है, पैगंबर पे नाजिल होने वाली किताब की तारीफ करके नात पढ़ी है, पैगंबर पे रिसालत जो उतरी है उस रिसालत की तारीफ करके नात पढ़ी है। अब गौर व फिक्र करने की बात है कि अभी बहर बर नहीं है, अभी शम्सो कमर नहीं है, अभी शजरो हजर नहीं है, अभी खुश्को तर नहीं है, अभी सूरज नहीं है, चांद नहीं है, अभी सूरज की हरारत नहीं है, चांद की बरूदत नहीं है, आसमानों के सितारे नहीं है, सितारों की कहकशाई नहीं है, अभी तो शबनम नहीं है, शबनम के कतरात नहीं है, अभी तो उम्मत नहीं है, उम्मत के अफराद नहीं है, अभी पैगंबर नहीं है, पैगंबर की रिसालत नहीं है, अभी पैगंबर नहीं है, पैगंबर की नबुव्वत नहीं है, अभी पैगंबर नहीं है, पैगंबर के असहाब नहीं है, अभी पैगंबर नहीं है, पैगंबर की शरीयत नहीं है, अभी पैगंबर नहीं है, पैगंबर के याराम नहीं है, अभी पैगंबर नहीं है, पैगंबर की बात नहीं है। जमीन और आसमान को पैदा करने से कबल अगर किसी का तस्करा है तो वो रब की जात है या मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई का तस्करा।
کسی تیسری شے کا تذکرہ آپ کو ملے گا نہیں، بس اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر قرآن میں آخری بات، پھر میں اپنی بات کو مکمل کرنے والا ہوں اتحاد امت کی طرف آ کر کے، کہ میثاق انبیاء کو اٹھائیے سورہ آل عمران میں۔ سمجھنا ہے بات، علماء کثیر تعداد میں آپ کے درمیان موجود ہے، ان علماء سے رہنمائی لے لینا۔ میثاق انبیاء سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے میثاق لے رہا ہے کہ تمہیں جو نبوت عطا کروں گا، تمہیں جو پیغمبری عطا کروں گا، تمہیں جو رسالت عطا کروں گا، تمہیں جو علم عطا کروں گا، تمہیں جو حکمت عطا کروں گا، اس حکمت، اس علم، اس نبوت، اس رسالت، اس پیغمبری کی عطا کے بعد کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں 2 شرطیں بتلانی ہیں کہ ان شرطوں پر عمل ہوگا تو سب کچھ ملے گا۔ میثاق انبیاء پہ بات کر رہا ہوں، اختصار کی غرض سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ دونوں شرطیں ہیں کہ یہ سب کچھ دوں گا، لیکن ایک پیغمبر آپ کے پاس آئے گا، جس پیغمبر کے پاس کتاب ہوگی، کتاب قرآن ہوگا، اور قرآن پھر 30 پاروں والا ہوگا، 40 والا نہیں ہوگا۔ اس کے پاس قرآن ہوگا 6666 آیات والا ہوگا، 17,000 آیات والا نہیں ہوگا۔ اس کے پاس قرآن ہوگا، ایسا قرآن جس میں موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ قرآن کو کوئی بدل سکتا نہیں ہے، قرآن ہوگا جو تبدیل شدہ نہیں ہوگا۔ اگر اسے کوئی تبدیل شدہ کہے، اسے کوئی 40 پاروں والا کہے، اسے 17,000 آیات والا کہے، یا یوں کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس شراب خور خلفاء نے اس کتاب کو بدل دیا ہے، نقل کفر مباشر، اگر یوں کہے کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ العاقل تکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس کے پاس ہوگی، وہ نبی بھی، اس کی کتاب بھی ان کتابوں کی جو پہلے نازل ہو چکی تصدیق کرنے والی ہوگی، تائید کرنے والی ہوگی، لیکن شرطیں کیا ہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، محمد کی تعریف کو دیکھیے، محمد کی عظمت کو دیکھیے۔ یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اب اس پیغمبر کی نعت کی بات ہو رہی ہے، اس پیغمبر کی تعریف کی بات ہو رہی ہے، اس پیغمبر کی توصیف کی بات ہو رہی ہے، اس پیغمبر کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، اس پیغمبر کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، اس پیغمبر کے مقام کی بات ہو رہی ہے کہ میثاق انبیاء میں دیکھتے ہیں یہاں تو سارے نبی ہے، یہاں تو آدم ہے، یہاں تو نوح ہے، یہاں تو شیس ہے، یہاں تو یوشع ہے، یہاں تو ابراہیم ہے، یہاں تو اسماعیل ہے، یہاں تو موسیٰ ہے، یہاں تو عیسیٰ ہے، یہاں کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی تو اللہ کا بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ یہ انبیاء ہے، ان انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے، ان انبیاء کے اوپر بھی وحی اترتی ہے، ان انبیاء کی بھی پیروی کا حکم ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ باتیں امتی کے لیے ہے کہ تو نے پیغمبر کی پیغمبری کو ماننا ہے، یہ بات تو امت کے لیے ہے، تو نے پیغمبر کی رسالت کو ماننا ہے، یہ بات تو امت کے لیے ہے اور امت کے افراد کے لیے ہے کہ تو نے پیغمبر کی شریعت کو ماننا ہے، تو نے محمد کی نبوت کو ماننا ہے، تو نے محمد کی ختم نبوت کو ماننا ہے، تو نے محمد کی سخاوت کو ماننا ہے، تو نے محمد کی عدالت کو ماننا ہے، تم نے محمد کی شریعت کو ماننا ہے، تم نے محمد کی صداقت کو ماننا ہے، تم نے محمد کی جنت کو ماننا ہے، تم نے محمد کی خلوت کو ماننا ہے، تم نے محمد کی معراج کو ماننا ہے، تم نے محمد کی ازواج کو ماننا ہے، تم نے محمد کی بنات کو ماننا ہے، تم نے محمد کے اصحاب کو ماننا ہے، تم نے محمد کے خلفاء کو ماننا ہے۔ یہاں پر جو میثاق لیا جا رہا ہے کہ اس پیغمبر پر ایمان دلانا ہوگا، اس پیغمبر کی بات کو بھی ماننا ہوگا، اس پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہوگی، اس پیغمبر کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرا پروگرام نہیں ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور کی ضرور محمد کی بات پہ ایمان لانا ہوگا، محمد کی نبوت پہ ایمان
लाना होगा, मोहम्मद की शरीयत पे ईमान लाना होगा, मोहम्मद की जलवत पे ईमान लाना होगा, मोहम्मद की खलवत पे ईमान लाना होगा। एक कदम आगे निकल करके ये भी बताना चाहता हूँ कि साथ ये भी होगा कि मोहम्मद के अबू बकर पे ईमान लाना होगा, इसलिए कि मोहम्मद का अबू बकर कोई आम आदमी नहीं है, मोहम्मद का अबू बकर कोई आम सहाबी नहीं है, मोहम्मद का अबू बकर वो है जब मोहम्मद हिजरत करके निकलने की कोशिश करता है, रस्ते की दुश्वारियां है, पैगंबर का साथी देखोगे अबू बकर मिलेगा, पैगंबर का रंगुसार देखोगे अबू बकर मिलेगा। एक मरहला ये भी आता है पैगंबर को परेशानी लाहिक होती है, इस परेशानी के आलम में, इस परेशानी के आलम में नबुव्वत के साथ दूसरा अबू बकर मिलेगा। जब दोनों परेशान हो जाते हैं, मोहब्बत में आकर के सिद्दीक अकबर कहता है पैगंबर क्या बनेगा, दुश्मन आ रहा है, दुश्मन ताकुत में है, दुश्मन ताकत में है, दुश्मन जोर में है, दुश्मन कत्ल करने पे दर पे है। फिर मोहम्मद तसल्ली देता है, उस तसल्ली का नक्शा आसमानों का खींचते हुए ये कहता है कि तसल्ली देते हुए इस यक़ूलु साहिबिही, मोहम्मद अपने सहाबी के लिए, मोहम्मद अपने साथी के लिए, मोहम्मद अपने दोस्त के लिए, मोहम्मद अपने रफीक के लिए। फिर वो दोस्त कौन है और रफीक कौन है, मैं कहने में हक बजानिब हूँ। उस दोस्त को देखोगे नाम अबू बकर है, उस रफीक को देखोगे नाम अबू बकर है, उस यार को देखोगे नाम अबू बकर है, उस पहरेदार को देखोगे नाम अबू बकर है, उस गमगुसार को देखोगे नाम अबू बकर है। ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, आसमानों का ऐलान करता है कि मोहम्मद की शरीयत पे ईमान लाना पड़ेगा। जहाँ मोहम्मद की हर बात पे ईमान लाओगे, वहाँ मोहम्मद के अबू बकर पे भी ईमान लाना पड़ेगा। ये कहा जा रहे आसमानों के रब की तरफ से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ये उम्मत के लिए ज़ाब्ता नहीं है। सवाल होता है ये तो उम्मतियों के काम है, नबियों के लिए ये क्यों है? जवाब आता है ये मेरे मोहम्मद की वो नात है जिस नात में इसका कोई सानी नहीं है। अगर वो अंबिया मोहम्मद को नहीं मानेंगे, अल्लाह को ये बात भी गवारा नहीं है। ईसा के अंबिया में रब ने बता दिया कि बात तब बनेगी जब मोहम्मद पे ईमान भी होगा, मोहम्मद की नुसरत भी होगी। तो ये हम थी, ये नात थी, उस हम को कहने वाला मुस्तफा है, इस नात को कहने वाला रब्बुल उला है। एक रब की सुन्नत है, एक रब के हबीब की सुन्नत है। रब की सुन्नत को भी अपनाइए और रब के हबीब की सुन्नत को भी अपनाइए। और फिर वो रब ये भी कहता है दुनिया के लोगों, दुनिया में कुफरिया ताकतें होंगी, वो ताकतें तुम्हें बिखेरने की कोशिश करेंगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं रब तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ कुरान के जरिए। मैं रब तुम्हें प्रोग्राम दे रहा हूँ आयात बय्यिनात के जरिए कि कुफर की इन साजिशों का शिकार नहीं होना, मुसलमानों मुत्तहिद रहना, मुत्तफिक रहना। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं इंतहाई दर्जे बात करने लगा हूँ कि हमारे यहाँ मसालिक की तफरीक कर देगी है, ये फुला मसलक से है, ये फुला मसलक से है, ये फुला मसलक से है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े मजबूत दलाइल की बुनियाद पर रेत के टीले पे नहीं पत्थर की चट्टान पे खड़े होकर के आपको ये बता करके जा रहा हूँ ये जितने मसालिक है ये तमाम के तमाम मुसलमान है। अगर तुम्हें कोई जुदा करने की कोशिश करे कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, उससे पूछो इस बरेलवी का कुरान कौन सा है, इस देवबंदी का कुरान कौन सा है, इस अहले हदीस का कुरान कौन सा है। खुदारा इख्तलाफ का वक्त नहीं है, बिखरने का वक्त नहीं है, टूटने का वक्त नहीं है। उम्मत मुसलमान को यकजा होना पड़ेगा, इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर हम मुत्तहिद न हुए बिखरते चले गए। हम देख ले आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है और फिर उनके साथ किस तरह के मजाक हो रहे हैं। एक इनकलाब जो ईरान के सरजमीन पे आया था, इस्लामी इनकलाब का नाम दे करके लोगों ने ये कहा था इस्लामी रियासत आ चुकी है, उसके जरिए इंतशार में, इफ्तराक में हमें फिर खबरियत के अंदर डाल दिया गया। और फिर आज वही लोग उन मजलूम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनका हमदर्द, उनका गमखार, उनकी नुसरत करने वाला, उनकी
معاملت کرنے والا ان کا چیف اینڈ کمانڈر اس کو گھر میں بلا کر کے اس دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا اور کوفے کی تاریخ کو دوہرایا گیا ہے. وقت مختصر ہے، ان سارے حالات کو دیکھیے. وہ ایران کا کفر ہو تب یا پھر دنیا کے کسی دوسرے کونے کا کفر ہو تب، یہ انڈیا سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کر امریکہ تک سارے کے سارے متحد ہے. اگر کوئی یہودی ہے وہ بھی متفق ہے، نصرانی ہے وہ بھی متفق ہے، ابن سبا کی اولاد ہے وہ بھی متفق ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے لہو کو اس انداز میں بہا دیا جائے کہ مسلمانوں کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا لہو بہایا جا رہا ہے، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آپ کی عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، آپ کی بہنوں کو بے آسرا کیا جا رہا ہے، آپ کی ماں کی گودیں اجاڑی جا رہی ہے. 36,000 سے زائد بچوں کو قربان کر دیا گیا ہے. ان ماؤں کی سسکیاں آپ نے سنی ہے، ان کی چیخیں آپ نے سنی ہے. وہ بوڑھا باپ چیخ کر کہتا ہے ربا گھر میں کوئی بیٹا نہیں رہا، کوئی بھائی نہیں رہا، میری کوئی بیٹی نہیں رہی. معصوم بچے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کر کے دن گزار لیا کرتا تھا. ربا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. مانگ اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ربا سب کچھ دینے کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ بیت المقدس کی عزت کی خاطر اگر کچھ اور بھی چاہیے وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے. کفر متحد ہو چکا ہے، ہم متفرق ہے. کفر متحد ہو چکا ہے، ہم منتشر ہے. کفر متحد ہو چکا ہے، ہم مسالک میں بکھر چکے ہیں. ان مسالک کی تفریقات سے نکلیے، متحد ہو جائیے، متفق ہو جائیے. ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے ایک کتاب کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک نبی کے صحابہ کو ماننے والے یک جان ہو کر کے کفر کے سامنے اعلان کر چھوڑو کہ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں. تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لیں. ہم نئے عزم کے ساتھ بنیادیں سہر رکھتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.